Hello everyone, welcome to the channel name as Neural Minds and we are again back with one more video जहाँ पर हम आज ऑफिशियली स्टार्ट करने वाले हैं विद आर कंटेंट विच वी आर गोना लर्न थ्रू आउट दिस जर्नी राइट इन द वेरी लास्ट क्लास which we learned about what are the chapters which we are going to cover throughout this journey, right? We get to know the glimpse of it, we get to know about what all are the chapters which we'll be learning, right? So today we are going to officially start with the very first topic called as linear algebra. Within this we learn so many other topics as well, right? So let's just start. Okay, let's just start. Let's be aligned with the very class. Okay, in the end of this class you could surely learn something new which we might have never learned about it, right? If you're a beginner, then to sure you're gonna learn so many things in this video, right? So in the very last class we get to know about that कि data science में जो mathematics का when I was taking the session, right, we get to know that mathematics in itself involves three major topics, right, called as linear algebra, one is statistics and differential calculus, right? We talked about it in total chapters, right, in which there was three division. One was linear algebra, the second was statistics, and third one was differential calculus, right? I told you guys about this, their applications and all these stuffs, right? So today these three topics are the ones which are going to be the core of the mathematics which are going to involve in the data science, right? जो भी data science में हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के machine learning या AML whatever it is, ठीक है, उसमें जो भी mathematics involve हो रहा होगा उसमें ये तीन broader categories में चीज़ें divide हो रही होंगी. The very first one will be linear algebra, second one will be a statistics, and the third one will be a differential calculus, right? The topic which we are going to start today is going to be linear algebra. Now within linear algebra for sure there are going to be so many subtopics, right? But the today video is going to be specifically talking about कि भाई linear algebra होता क्या है, what are these operations, right? इसमें क्या क्या चीज़ें होती है, like scalars and vectors, right? Vectors के अंदर में क्या applications है, what are the operations which we can perform on the vectors. Somewhat we are going to learn in this first part, and for sure the second part is also going to be come in the some time. So in that we'll see the complete linear algebra topics which are there, right? So the operations and all, right? So focusing on that, right? So that is what going to be the aim of the first today's topic, right? कि हम जानेंगे क्या क्या चीज़ें होती है linear algebra के थ्रू. सो गणेश जी का नाम लेकर के गाइस लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द वीडियो, ठीक है? बी फोकस, बी अलाइन, ठीक है? कंप्लीट दिस वीडियो टू द लास्ट, ठीक है? वॉच दिस टू द लास्ट एंड लेट्स सी how it goes, right? So come on, let's start. Okay, so the topic officially going to start with this called as linear algebra, right? So I've gone prepared some slides so that it don't take so much of a time, right? Okay, ठीक. सो द लेट्स स्टार्ट बाय सेइंग अबाउट अ वेरी बेसिक थिंग. भाई जान लेते हैं डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है? पेपर में नहीं आती, कुछ नहीं होता है, बट लेट्स स्टार्ट गेट ग्लिम्स ऑफ इट कि भाई लिनियर अलजेब्रा एज अ टॉपिक व्हाट इट डज, राइट? मैथमेटिक्स में कैटेगरी है, राइट? इट्स अ branch in itself called as linear algebra. You can do a PhD in it, right? There's tons of topics which are comes under linear algebra. Just to know that what is linear algebra, just see the definition of it, right? So linear algebra focuses on the study of vectors, vector spaces, linear transformation and system of linear equations, right? Now what are these vectors, vector spaces, a linear transformation and system of linear equations? It's a complete story, but linear transformation, it's a thing. In the last class I talked about something called as image rotation and all, right? If you guys remember that in the video I mentioned something called as image rotation, right? In which I was saying that images internally consist of matrices, right? In which the matrices involves RGB values, right? RGB colors values. Now these RGB values we need to give into the models, right? So that our model can learn them nicely, right? Our images can be learned by the models nicely. So we give them in multiple rotations, right? मैं चाहता था कि मेरी images कई सारी dimensions में जाए, कई सारी rotations में जाए, ताकि एक ही images के मेरे पास model के पास 10-15 pictures हों, right? So that whenever a new images comes, it can easily able to detect them into based on the multiple descriptions which we have give, right? जैसे एक इंसान होता है, right? एक इंसान के बारे में अगर मैं किसी इंसान को बताता हूँ, राइट, तो मैं उसके बारे में 10 चीज़ें और बताता हूँ, लाइक इट्स अ गुड बॉय, इज अ टॉल, इज अ हैंडसम, like this. I tell multiple features of that person, right? The same way if I want to tell to my model that this is the image, I'll try to give them multiple features. I would try to tell to my model भाई कि इसकी 10 चीज़ें होती हैं, इस images में ये RGB है, ये है, इस rotation में ये वाली RGB values are coming as a stronger point, right? I try to do this, right? Scaling, how they done, that's complete mathematics which we will learning further onwards जब भी हम उसको पढ़ रहे होंगे, right? तो ये चीज़ होती है. तो नाउ दिस इज सम applications which we learned in the very last class, right? So if someone will ask what is linear algebra, right, you need to just give a simple definition to it, ठीक है? अगर पर्सन कुछ ज़्यादा ही keen get in knowing what is the meaning of linear algebra, say them linear algebra as a branch, it's a branch in the mathematics, right? ठीक है? Focuses on the study of vectors, vector spaces, linear transformation and system of linear equations. Now what are these? We'll be learning coming time, right? ठीक है? So that's a small thing, ठीक है? Vectors क्या होता है? You guys must be knowing. You guys are coming from your 11th and 12th, might be on your first year of the branches, right? In your degrees, right? So you guys must be knowing about what is vectors, and we'll be also saying in the sometime, right? ठीक है? तो वो होता क्या है? Now the coming point is what is the meaning of
लीनियर अलजेब्रा का मतलब क्या होता है, ठीक है. सो फॉर दिस आई वुड लाइक टू गाइस टेक यू गाइस टू एन एग्जांपल, राइट. एक एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से, ठीक है. तो लेट्स से दिस इज अ डेटा सेट. आई होप एवरीवन नोज अबाउट व्हाट इज अ डेटा सेट, राइट. डेटा सेट्स मींस इट कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल रोज, राइट, मल्टीपल रोज एंड मल्टीपल कॉलम्स, राइट. सो लेट्स से दिस इज, आई विल कॉल दिस इज एरिया, ठीक है. लाइक दिस इज कॉल्ड एज अ लोकेशन, राइट, एंड लेट मी कॉल दिस इज अ let's just say that this is number of rooms, ठीक है, ठीक है. And let's say this is the price, and we are working on a data set, name as house prediction model, right. ठीक है, house prediction model is what we are trying to build it, right. House prediction price model, right. House price model is what we are trying to build, right. So these are the features, right. In my house, there can be multiple features. For the sake of the example, let's just say that in my house, I'm trying to categorize the price of my house. This is my output. I want in my model, I want this price to be come out as my output, right. So this will be my output, and this will be my input. I'll say to the model that this area is, take one thing as area, take another thing as a location, right, and take another thing as a number of rooms, right. Based on this, try to give me the price of my house, right. What should be the correct price of my house? That's we are going to trying to predict it, right. So these are my input variables, what we call them, ठीक है. तो जो भी हम चीज़ें input देते हैं to the model, so that my model can learn them, is called as input features, right. And after learning the model, whatever the output my model will give, that we call as output features or output value, whatever it's trying to give, right. ठीक है. So let's say that currently we are working on a house price model, right. And let's say there is some categories. Let's say I'll just mention them. Let's say that's a 1200 square feet flat. Let's say location is, let's say you guys are living, let's just say for the sake of example, let's just say that this is Gorakhpur, ठीक है. Number of rooms, let's say this is 3 BHK flat. Price of this is, let's say 45 LK lakh, ठीक है. Let's say like this, I have multiple tons and tons of data points, right. I have so many records of my different models, right. So what we are trying to do in this, right. We are trying to create a model, right. What we are trying to do is, we are trying to create a model, right. Yes, this is what we are trying to do, right. और इसमें मॉडल के अंदर क्या करना चाह रहा हूँ भाई, इसके अंदर मैं अपना एरिया दे रहा हूँ, ठीक है. इसके अंदर मैं अपना आई एम ट्राइंग टू गिव माई लोकेशन, राइट. एंड अनदर थिंग विच आई एम ट्राइंग टू डू इज ट्राइंग टू गिव माई नंबर ऑफ रूम्स, ठीक है. लाइक दिस आई वांट टू, आई एम ट्राइंग टू गिव दिस ऑल दिस इनपुट्स टू माई, व्हाट आर these are nothing but my input features. These are nothing but my input features, right. So based on this, it will learn all these parameters, right, area, location and number of rooms, and at that this will give me an output. Now output will be what? This will be my price. This is what I wanted, right. तो मेरे को ये प्राइस ला करके देगा, ठीक है. और ये होगा क्या, ये मेरा जो मॉडल होगा, दिस आई ट्रेन देम, आई ट्राई टू ट्रेन दिस मॉडल, राइट. और ये ट्रेन किस बेसिस पे होगा, on this data set, right. जो भी number of, जो भी features, जो भी data points मेरे को दिए होंगे in this data set, I'll try to give this to the model, right, in the ways of areas, location, right, and number of rooms, right. Like this I'll try to give them, right. ठीक. तो अब चीज़ें क्या होती हैं, हाउ आई ट्राई टू गिव देम, राइट. नाउ आई कैन डायरेक्टली गिव दिस टू द, भाई मैं डेटा सेट तो मैं समझ पा रहा हूँ ना, दिस इज फॉर द सेक ऑफ माई एक्सप्लेनेशन, ठीक है. ये तो विजुअल रिप्रेजेंटेशन मेरे को दिख रहा है, बट देयर शुड बी अ मैथमेटिकल वे फॉर मी टू गिव दीज इनपुट्स टू द मॉडल, राइट. कुछ ना कुछ मैथमेटिकल तरीका होता है, राइट. सो दिस मैथमेटिकल तरीका इज ओनली विच वी कॉल्ड एज वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है. Something called as vector representation, right. We try to represent these inputs in the terms of vectors, right. हम इनको vectors के type में convert करने की कोशिश करते हैं, right. And after converting them to the vector, then I'll try to give this to the model, right. Because this data set is something which I'll be able to get it, right. But there should be some mathematical way for the model also to learn them, to know them, to visualize them, right. That the way is only called as vector representation. Now what I try to do is, I create a vector. Let's say this is my vector, ठीक है. Now within this vector, I have something called as area value, I have something called as location value, right. There's something called as number of rooms value, right. Like this, I'll create my vector and give it to the model, and I'll give it this to the, what I'll do is I'll give this to the model, ठीक है. Now what I'm trying to do is I'm creating a vector out of this, ठीक है.
Now after giving this, now what my model will do, this what now there's a way for the model also to know them, right? मेरे पास model के पास भी एक तरीका आ गया कि ताकि model भी समझ सके, right? This was something which I was able to see it, right? But not my model will be able to see it. What my model will be able to see it, my model will be able to see it something कोई mathematical way में, right? So this mathematical way is only called as a vector representation, right? ठीक, तो I'll try to convert this to the vectors. How these vectors gets converted, that's a separate story. Okay, don't try to know about it. But we convert them into the vectors. Whatever the data sets which we have, the data points which we are having, right? Later try to convert them into the vectors, right? And that vectors we sent it to the model, right? So all these features, these independent features, we try to convert them into the input, right? Also, sometimes we try to give the price, the output features also within the vector only. So let's say there's another vector called as area, location, number of rooms, and something called as price also. Now within this vector I have my input and output, both type of variables, right? मेरे पास input भी है, output भी है, and I can perform some mathematical operations. It can easily distinguish between them, right? कि कौन से मेरे input features हैं, and based on my input features I try to give them to the model. In the later words it will give me this price as my output. भाई सबसे बढ़िया बात है, right? इसके बाद क्या ही चीज़ ज़िंदगी में, ठीक है? तो ये मैं निकाल लूँगा at the end of the day, ठीक है? So this vector representation, how we are able to do it, that's the thing which we are able to do it because of the help of linear algebra itself. ठीक है, linear algebra की वजह से ही we are able to convert them into the vectors only, right? How we convert it, don't try to know about it for the time being, but just we are talking about the applications only, right? That the conversion of the vectors which we are able to do it with the vector representation called as linear algebra only, ठीक है? Now one more advantage we get in this, right? What is that? कि भाई area के हम we are able to determine the relationship between these input and the output in with the input and also the input only, right? कि मैं area और price के बीच में भी relation निकाल सकता हूँ, right? Let's say मेरा अगर area, what are the chances area अगर बढ़ रहा है तो price भी बढ़ रहा होगा, right? ठीक है, like this I can say मेरा number of rooms, right, बढ़ रहा है तो शायद प्राइस भी बढ़ रहा होगा, करेक्ट? दिस इज द जनरल विच भी हैपन्स, राइट? लोकेशन के बेसिस पे प्राइस कैन इंक्रीज और डिक्रीज, करेक्ट? भाई लोकेशन अच्छी जगह पे होगी तो ऑफ कोर्स द प्राइस विल इंक्रीज एंड लोकेशन विल बी इन द आउटसाइड ऑफ द सिटी, लेट्स से आउटसाइड ऑफ द बैंगलोर सिटी और द चेन्नई सिटी, राइट? If it's so far 70 kilometers, 80 kilometers, 60 kilometers, 50 kilometers, which means it's so far from the city, right? So my house price will be comparatively less than the whatever the price of it will be in the city, right? So that's how we can qualify find the relationship between them. So now what, just I would like to try to give you guys some terms as well, right? Just try to mark them as well, right? कि मैं यहाँ पे न्यूमेरिक एरिया विल बी व्हाट, समथिंग विल बी माय न्यूमेरिकल वैल्यू, प्राइस विल बी व्हाट, माय न्यूमेरिकल वैल्यू, नंबर ऑफ रूम्स 2 rooms, 3 rooms, 4 rooms, like this only, and price will also be my rooms only, right? And location will be it will not be a numerical value, right? It will be something called as Bangalore, Kolkata, Mumbai, Delhi, right? It will be a textual form of information, right? And based on that, a numerical value is trying to get, we are trying to determine the relation between them. So whenever it's a numerical relation, numerical to numerical relation, ठीक है, that's we call as a quantifying relationship. ठीक है, ट्राई टू मार्क दिस. अगर मैं न्यूमेरिकल आई एम ट्राइंग टू क्वांटिफाई द रिलेशनशिप, राइट? और अगर मैं लोकेशन और प्राइस के बीच में अगर कर रहा हूँ, राइट, द वन विल बी अ टेक्सचुअल फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन, अनदर विल बी so that's will be based on qualitative relationship, right? So these are the two things which I wanted to tell you guys about it. You guys can know about it as well, right? So what is the thing which we have learned so far is called as कि भाई जो भी मेरा data set है, I'm trying to convert them into the vector so that my model can know them, right? Data set is not something which model can know about it, right? That is the thing which we are only able to see it, right? So vector, in the terms of vectors only I give it to the model, right? So मैं vectors में convert करूँगा, how they are able to convert it, that is only which we learn in linear algebra, right? Now after converting them into the vectors, we get some advantages also, right? What are these advantages? These advantages was that after converting them into the vectors, I was able to determine the relationship between the input features, right, among the input features, and also the input and the output features also, right? That if the area is getting increased, is my price is also getting increased? Yes.
So that's how I can make these relationships as well, right? So this is the reason I can easily are able to figure. Now that's a thing, right? There's a terminology which has been given, right? This all the things which we are doing, right? There's a term which we call as, okay, whatever the things I am doing, we call them as data representation and data manipulation. ठीक है, ठीक है. I'm trying to represent the data, right? I'm trying to represent the data in the terms of data in the vectors, right? So that the topic which we will be giving to this example application, right, will be a data representation and data manipulation. Further I'll be manipulating the data as well, right? So this is the thing, ठीक है. Now some things also comes whenever we went to the vector site. अब सर vectors में क्या चीज़ें हैं, क्या हम कितने भी n numbers of dimensions को भी involve कर सकते हैं. Now what are these dimensions? The number of features I am writing in my vectors, right? That only we called as dimensions, right? अभी for the time being understand that मैं जितने भी features लिखता हूँ अपने vector के अंदर में, that only we call them as my dimensions, right? तो मेरे वेक्टर में क्या सिंगल डायमेंशन भी हो सकता है? yes. अगर मैं खाली एरिया रिप्रेजेंट कर रहा होता, आई वुड हैव कॉल्ड देम एज सिंगल डायमेंशन, राइट? ठीक है. एंड लेट्स से देयर इज वन मोर वेक्टर, इसके अंदर में एरिया, नंबर ऑफ रूम्स, एंड लाइक दिस आई हैव सो मैनी dimension. For this what I'll call them as, I'll call them as multi-dimension vector, right? So my vector can have any number of dimensions, right? It can have a single dimension also, it can have multiple dimensions also, right? So this is the thing which I want to tell you, right? Now the thing comes is कि सर कोई लिमिट है क्या number of vectors के dimension होने की? Yes, according to the systems, right? According to the systems which we are working upon it, right? मेरे मॉडल के बेसिस पे भी ऑल्सो, राइट, वी कांट गिव जितने मर्जी डायमेंशन विच आई वांटेड, राइट? मेरे को कुछ सेट करना पड़ेगा. लेट्स से मेरे मॉडल में 1000 के आसपास डायमेंशन है, बट मेरे डेटा सेट में 1000 के आसपास डायमेंशन, 1000 के नंबर्स में पास फीचर्स है, राइट? बट मेरे मॉडल की क्षमता ही नहीं है. मॉडल इज नॉट एबल टू मॉडल इज नॉट एट ऑल केपेबल ऑफ रीडिंग दिस 1000 डायमेंशंस, राइट? तो मैं क्या करता हूँ, उनको फिर कम करने की कोशिश करता हूँ, राइट? रिमेंबर द पास्ट क्लास आई टोल्ड यू गाइज अबाउट डायमेंशनलिटी रिडक्शन, राइट? So there are some ways in which, with the help of which we can do this dimensionality reduction also. But yes, we can have any number of dimension into our vectors, right? कितने भी number of dimension हो सकते हैं मेरे vectors के अंदर में, but there's a some constraint, right? According to the model, according to the algorithm which are taking in the use while building the model, right? There is some constraint on how many numbers of dimensions can be there, right? So अगर मेरे पास 1000 है तो मैं उसको 2 डायमेंशन में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, एंड दैट 2 डायमेंशंस विल बी एबल टू प्रेडिक्ट माई मोस्ट ऑफ द मॉडल आउटपुट, राइट? सो डायमेंशनलिटी रिडक्शन इज डन कीपिंग इन द माइंड दैट माई इन्फॉर्मेशन डोंट गेट लॉस्ट और इट इज मिनिमम, ठीक है? तो या दैट इज द केस, राइट? तो यस, दैट्स द थिंग, ठीक है? ऑल्सो कुछ और एडवांटेजेस मिल जाते हैं. बेस्ड ऑन दिस वी कैन मेक सम पिक्टोरियल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑल्सो, राइट? कि अगर भाई मेरा इस तरीके से अगर मेरा यहाँ पे मैं एरिया बनाता हूँ और यहाँ पे लेट्स से मेरा प्राइस है, राइट? जैसे जैसे मेरा एरिया बढ़ता जा रहा है, राइट, माई प्राइस विल ऑल्सो गेट इंक्रीज्ड, राइट? इन दिस वे आई कैन सी दिस, ठीक है? दिस इज अ 2 डायमेंशन मॉडल, राइट? ठीक है, दिस इज जस्ट अ 2 डायमेंशन मॉडल. लाइक दिस आई कैन मेक n number of dimensions, right? But yeah, human beings cannot go and can think beyond 3 dimensions, right? For 3 dimensions the max we can see and can imagine. But yes, matrices can imagine any number of dimensions, right? Can determine the possible outcomes, can determine the relationship within themselves, can with the help of any number of dimensions, right? But human beings have some constraints, right? We cannot imagine visualize these representation and graphics beyond that 3 dimensions, right? So these are the things, right? मेरे data set के basis पे I can make these vectors so that my model can learn them better, right? Going further, right? This is what we call as a vector representation, right? We can find out the relationship between all the features within themselves, right? ठीक है, उनके बेसिस पे भी हम लोग क्या बोलते हैं, उनके बेसिस पे भी हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं उनके रिलेशनशिप्स को, राइट? एरिया, प्राइस, नंबर ऑफ रूम्स, लाइक दिस वी कैन डिटरमाइन एनी नंबर ऑफ थिंग्स, राइट? ऑल्सो कमिंग दिस कि भाई वेक्टर्स में कितने भी नंबर ऑफ डायमेंशन हो, ठीक है?
और क्या होता है भाई, और हम ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं, ठीक है, कि विद द हेल्प सो दैट कि जो भी अदर पर्सन हमारे साथ है, let's say if I want to explain this to someone else, right, they can also get a better gist of it, right? So all and all are these things are the examples of linear algebra, right? कि हम algebra की वजह से we can do these many things in machine learning or artificial intelligence, right? So yes, that's the thing, ठीक है. This is one example which I wanted to tell you guys about it, ठीक है. सो यस, मशीन लर्निंग में कहाँ यूज़ होता है सर? ये मशीन लर्निंग में ये कई जगह यूज़ होता है. वन एग्जांपल ऑफ दिस इज डेटा रिप्रेजेंटेशन एंड जब हम डेटा फीचरिंग कर रहे होंगे, मल्टीपल फीचरिंग कर रहे होंगे, राइट, डेटा रिप्रेजेंटेशन में काम आता है, मैनिपुलेशन में काम आता है, राइट. लाइक दिस इन दिस केसेस ऑल्सो वी कैन मेक दिस. ट्रेनिंग के टाइम पे वी कन्वर्ट देम इनटू द वेक्टर्स एंड कैन गेट अवर. डायमेंशनलिटी रिडक्शन के केस में वेक्टर्स आर द वंस जहाँ पे हम आइगन वैल्यूज, राइट, आइगन वेक्टर्स के बारे में बात करेंगे. न्यूरल नेटवर्क में फॉर श्योर जहाँ पे वेक्टर्स ही सेंड कर रहे होते हैं थ्रू आउट दिस इनपुट्स, राइट. तो उस केस में भी डीप लर्निंग में बैकवर्ड प्रोपगेशन के टाइम पे दिस वी ऑल डिस्कस्ड इन द पास्ट क्लास, राइट. नाउ व्हाट्स द टॉपिक विच वी आर गोइंग फॉरवर्ड टुडे इज, ठीक है, ये दिस इज यू गाइज नीड टू नो अबाउट इट, राइट. इतना चीज़ें आनी चाहिए, देन ओनली विल बी एबल टू मूव फॉरवर्ड, राइट. सो या टेक अ जिस्ट ऑफ इट एंड वट एवर द टॉपिक्स, वट एवर द डाउट्स यू गाइज मस्ट बी हैविंग इन दिस ऑल दिस, ठीक है, ट्राई टू गिव इन द कॉमेंट सेक्शन, ठीक है. आई विल बी हैप्पी टू आंसर यू ऑल, ठीक है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द स्केलर थिंग, राइट. नाउ वेक्टर्स, नाउ लीनियर अलजेब्रा एज अ क्वांटिटी have, right, as a quantity have two things, right. One is scalar and another one is vector, right. Now what is this scalar, right? Let's go by the definition of the physics which we all learned in the time of our 11th and 12th, right. What are these definitions called as? A single numerical value bhai which represents a magnitude or the quantity as and no at all directions, right. ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ, ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ, ठीक है, कि भाई मेरे आज I got 5 marks, I have got 10 marks, I was having 40 degrees Celsius, I was moving at a speed of 45 degree, ठीक है, 45 meter per second, right, 45 kilometer per hour, whatever it is, right. So that's the thing, ठीक है. 45 kilometer per hour will be what, ठीक है. तो हम लोगों ने फिजिक्स के टाइम पे पढ़ा था स्केलर हैज़ द ओनली एंड ओनली मीनिंग, भाई जो वैल्यू आप किसी भी चीज़ में जब आप बता रहे होते हो, यू आर एक्सप्लेनिंग समथिंग टू दिस अदर पर्सन, राइट. If you are just mentioning a value, that is the only meaning of scalar, right. Just a single value is called as a scalar, right. So example, if I would you take it to the, let's say temperature it is, right. We select the pen, yeah, temperature, right. How we denote it as, let's say I was having example of 40 degrees Celsius, right. Now this 40 degrees Celsius, does it have a direction as a 40 direction to the east, 40 direction to the west? No, nothing. It is a 40, it's just a value. I'm having a fever of 40 degrees Celsius. The temperature outside is 40 degrees Celsius, right? So the only, so that's just is that scalar quantity. ठीक है, किसी भी sense में it does not make any kind of sense that it is having any kind of direction, right? It's just a single value. This is a single value, right? Like this only can have a speed also. I am going with the speed of 45 kilometer per hour. Let's say 4 kilometer per hour. Right, I'm going with the speed. So that's not a speed of a car, right? Let's say I'm just walking with the speed of 4 kilometer per hour. It's in a single hour I'm able to cover 4 kilometer, right? So that's also the case, right? It's just a value. It doesn't mean I'm walking to the 4 kilometer to the east. Will it get changed? No, it will not change, right? So it's a scalar value only, right? So this is also scalar value. So these are some examples, right? You guys can take care of this, right? Now सर ये तो फिजिक्स के बारे में बात हो गया. मैं 11th 12th में फिजिक्स पढ़ के आ चुका हूँ. आई डोंट वांट टू लर्न फिजिक्स, आई एम डन. ठीक, प्लीज़ टेल मी जो मैं पढ़ने आया हूँ डेटा साइंस के बेसिस पे इसका कहाँ रोल आता है, राइट. व्हाट इज द स्केलर वैल्यूज कम्स एज अ रिजल्ट इन आर डेटा साइंस फील्ड एज वेल, राइट. सो लेट्स से दिस अ डेटा सेट, राइट. लेट्स से दिस F1 फीचर, लेट्स से दिस अ सिंगल कोई भी फीचर है, राइट. एक और F2 फीचर है. लेट्स से दिस आउटपुट विच इज कमिंग, ठीक है. लेट्स दिस व्हाट इज दिस कॉल्ड एज माय आउटपुट फीचर्स आर कॉल्ड एज टारगेट वेरिएबल्स, राइट. माय टारगेट फीचर्स, माय आउटपुट फीचर्स एंड इनपुट वेरिएबल्स आर कॉल्ड एज इनपुट फीचर्स, राइट. So like this I have so many data points, right. और जो मेरे पास values होती है I call them as data points, right. ठीक. Let's say with the help of this I have made my made my model. मैंने अपना मॉडल बना लिया, right. But before making the model as well, I will try to get some gist of my data set, right. मैं जानना चाहूँगा मेरा डेटा सेट एक्चुअली कह क्या रहा है, क्या क्या उसके अंदर प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या क्या वो चीज़ें कैरी कर रहा है, ठीक है. क्या मेरा डेटा सेट क्या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्या वो अनयूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, राइट. हाउ कैन आई प्रेडिक्ट देम, हाउ कैन आई गेट टू नो अबाउट ऑल ऑफ दिस. आई परफॉर्म सम ऑपरेशंस ऑन देम, राइट. दिस इज माई डेटा सेट, ठीक. दिस इज माई डेटा सेट. व्हाट आई डू इज, भाई मैं उसके बारे में कहीं मीन निकालूंगा, राइट.
मैं मीडियन निकालूंगा इस डेटा सेट का, राइट, या मोड निकालूंगा, ठीक है, yeah, I'll try to calculate the mode as well, right? I'll try to do multiple things, right, in this way, so that I can get to know about my model. मेरा model कितना अच्छा है, कितना बेकार है, right? How well is my model, right? So how can I derive all these things from my model or my data set, right? I'll try to get the values, some common values from this, right? मेरा average क्या है, right? किसी feature का average क्या है, right? तो उस तरीके से मैं करता हूँ. Let's say अगर मेरे किसी feature में एक value पड़ा हुआ 55 and my mean of the feature is coming as 125, तो आई कैन से ना कि दैट मीन का मतलब क्या होता है भाई, ऑलमोस्ट वैल्यू इसके आसपास है, राइट, और मेरे एक का 55 आ रहा है और मीन वैल्यू एक 55 है और मीन मेरा जो आ रहा है इट्स कमिंग इज 125, राइट. तो क्या पता चल रहा है कि भाई दिस इज सो मच फार फ्रॉम माई मीन, राइट. सो इट्स अनयूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, राइट, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड, राइट. सो लाइक दिस आई कैन डिराइव सम रिलेशनशिप्स फ्रॉम माई डेटा सेट, राइट. आफ्टर गेट मेकिंग द मॉडल, अब मुझे मॉडल जानना है भाई, मेरा मॉडल कितना अच्छा काम कर रहा है, राइट. सो ऑन देम ऑल्सो आई ट्राई टू परफॉर्म सम ऑपरेशंस, राइट. मैं मॉडल की समरी निकालूंगा, मॉडल का डिस्क्रिप्शन निकालूंगा, राइट. सो ऑल एंड ऑल दीज वैल्यूज कम्स इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल ओनली, ठीक है. मेरा मीन, मीडियन, मोड, वेरिएंस, जो भी मैं चीज़ें निकालूंगा इन ऑर्डर टू ट्राइंग टू गेट टू नो अबाउट माई मॉडल, all and all these will comes as a form of numerical only, or the singular value, right, whatever the which you were saying, right. So all and all these things are called as scalar values only. तो भाई सर ML में इसका काम कहाँ आएगा, ठीक है, जब भी आप अपने मॉडल के साथ या डेटा सेट के साथ कभी भी कोई भी चीज़ डिराइव करना चाहोगे, राइट, मॉडल के बारे में या डेटा सेट के बारे में कुछ जानना चाहोगे, राइट, विद द हेल्प ऑफ सम मैथमेटिकल मेजरमेंट्स, राइट, सेंट्रल टेंडेंसीज, दीज वर्ड वी कॉल देम एज मीन, मीडियन, मोड, राइट. उनकी वैल्यूज़ निकाल करके यू विल ट्राई टू मेक सम सेंस आउट ऑफ देम, यू कॉल देम एज वॉट एवर द रिजल्ट्स दे विल गिव इन द एंड, you will call them as scalar values. They'll not have any sort of directions, right? So you'll call them as scalar values, right? So scalar values in machine learning don't impact so much, right? Don't have so much of significance. It's a pre-computation steps which we follow at the time of data model preparation and all this, right? So this is what we have with respect to scalars, right? कि स्केलर होता क्या है, क्या एग्जांपल्स होते हैं, एप्लीकेशंस कहाँ पे यूज़ होती हैं, डेटा प्री प्रोसेसिंग के टाइम पे यूज़ होता है, ठीक है, डेटा हाँ एवेल्यूएशन के टाइम पे यूज़ होता है, ठीक है. एंड लाइक दिस मॉडल इवेल्यूएशन, डेटा मॉडल इवेल्यूएशन और डेटा इवेल्यूएशन, जो भी करना है आप लोग को, ठीक है. लाइक दिस इट कैन बी यूज्ड इन मैनी प्लेसेस, राइट. सो या दैट्स द थिंग, ठीक है. तो स्केलर्स का मतलब क्या होता है, वी गेट टू नो अबाउट इट, राइट. नाउ कमिंग टू द पार्ट विच वी ऑल वर वेटिंग फॉर, ठीक है, जो मेनली यूज़ होता है हमारे डेटा साइंस की फील्ड में, राइट, इन सम गुड सेंस एज वेल, राइट, कुछ अच्छी जगहों पे, राइट. समथिंग कॉल्ड इज वेक्टर्स, राइट. सो लेट्स जस्ट नो अबाउट व्हाट इज द वेक्टर डेफिनेशन, राइट. सो फिजिक्स के बारे में बात करूँ सर, मैं फिजिक्स के बारे में बात करूँ, फिजिक्स में हम लोग ये सब चीज़ें पढ़ते थे, राइट. फिजिक्स में ये सब चीज़ें यूज़ होती है, मैथ्स में यूज़ होती है, हमारे डेटा साइंस फील्ड में यूज़ होती है, राइट. तो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हो भाई, ठीक है, विथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस, राइट. स्केलर क्या होता है, ओनली न्यूमेरिकल वैल्यूज विथ मैग्नीट्यूड्स एंड नॉट एज एनी सॉर्ट ऑफ डायरेक्शंस, राइट. बट व्हाट इज वेक्टर, इट्स अ न्यूमेरिकल वैल्यूज विथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस, राइट. तो ये होता है फिजिक्स के हिसाब से सर हम लोग पढ़ते आ रहे थे, राइट. मैं एक इनिशियल वेलोसिटी डालता हूँ यू की स्पीड से विद एन एंगल थीटा, सो नाउ इट्स हैज अ डायरेक्शन, राइट. सो बट मैं फिजिक्स में तो कोई इनिशियल वेलोसिटी दूंगा नहीं, राइट. मैं डेटा साइंस में डेटा साइंस में तो मैं अपनी कोई इनिशियल वेलोसिटी देने नहीं वाला हूँ, या मैं अपने मॉडल को ईस्ट में भेजने नहीं वाला हूँ, राइट, या उसके पास कोई एक्सेलरेशन होने नहीं वाला है, राइट. तो इसमें सर क्या डायरेक्शन का सेंस बन रहा है वो बता दीजिए, ठीक है. सो बिफोर दैट लेट जस्ट नो अबाउट भाई डेटा साइंस में वेक्टर की डेफिनेशन क्या चेंज होती है, ऑलमोस्ट सेम बट डिफरेंट वे ऑफ एक्सप्लेनिंग इट इन द डेटा साइंस फील्ड, राइट. व्हाट इज दैट कि अ वेक्टर is an ordered list of numbers, right. What it will be, ठीक है. We also scale जब when we were talking about the data representation manipulation, right, we represented these input features in the terms of vectors, right. In the 5 minutes before only we were talking about it, right. तो वेक्टर क्या होता है, वेक्टर इज ओनली नथिंग बट ऑर्डर लिस्ट नंबर ऑफ नंबर्स, देयर विल बी लिस्ट ऑफ नंबर्स, देयर विल बी मल्टीपल नंबर्स इन द टर्म इन ऑर्डर्ड फॉर्म, राइट. Now it can, these numbers can represent a point in a space. एक space अगर हम draw करते हैं, let's say अगर मैं कोई graph draw करता हूँ in that space, a point will represent its magnitude of quantity along with its direction, right. It will also represent its direction. Now direction होता क्या है, that we'll learn, right, that we'll surely learn, ठीक है. तो एक physics के example से समझते हैं इस चीज़ को, right. That's the reason I did not involve any sort of pictures so that you guys can know about it nicely, right.
तो एक फिजिक्स का एग्जांपल मैं बताता हूँ. लेट्स से माय, ठीक है, दिस इज माय कार. डोंट जज मी ऑन माय ड्राइंग गाइस, ठीक है. इट्स, आई नो a second year old kid can also make better drawing than me, right? So that's moving in the east direction, right? Like this only we used to see in the physics, right? Let's say if it's a kinematic motion, right? I've dropped this initial velocity with an angle theta, right? It will do a parabolic, it will projectile motion, like so. Like this only we also used to say that okay, all these things was used to come in physics. Now what are these? They used to have this magnitude as well along with this direction as well, right? They used to have this magnitude also and along with this direction as well, right? So this we were talking in terms of physics. Now in data science, direction स्पेसिफिकली उस तरीके से नहीं देखा जाता जिस तरीके से हम लोग फिजिक्स में देखते हैं, राइट? किस तरीके से देखा जाता है? लेट्स से आई गाइस गिव यू एन एग्जांपल, ठीक है. लेट्स से अ पर्सन, ठीक है, दिस अ पर्सन, राइट? वेट्स हैज बीन गिवन इन टर्म्स ऑफ वेक्टर्स, ठीक है. तो भाई एक पर्सन है, लेट्स से दिस पर्सन इज नेम एज ए, ठीक है. वी चेंज द कलर, बहुत रेड रेड हो रहा है, ठीक है. Yes, ठीक है. लेट्स से दिस पर्सन was 75 in the, let's say, May month. Then he became 79 in the June, 85 in July, and then again he dropped 76 in August. ठीक है. Let's say these are the weights of a person, right? And we have represented in terms of vectors, right? Now you guys can see that कि भाई 70 in May to June to July and to August, right? There's some direction which is getting followed, right? कि भाई एक person था जिसने 75 मई में इसको अचीव किया वेट, राइट? फिर जून में 79 गया, देन 85 जुलाई में गया, देन 76 चला गया वो अगस्त में, राइट? ठीक है. सो दिस अ डायरेक्शन, राइट? दिस इज सम सॉर्ट ऑफ डायरेक्शंस व्हिच इज गेटिंग फॉलोड बाय द वेट्स इन द टर्म्स ऑफ मंथ्स, राइट? मंथ के बेसिस पे आई एम एबल टू गिव द डायरेक्शन टू माय वेट्स कि माय मंथ मई में इतना है, जून में इतना है, जुलाई में इतना है, अगस्त में इतना है, राइट? राइट, ठीक है. इस तरीके से वी टॉक अबाउट, राइट? कि भाई एक वेक्टर का सेंस भी, डायरेक्शन का एक सेंस बना रहे हैं हम लोग, राइट? हम मंथ के बेस पर एक डायरेक्शन का सेंस बना रहे हैं, राइट? लाइक दिस ओनली वी ट्राई टू क्लासिफाई देम, राइट? जिस तरीके से हम लोगों ने पिछला एग्जांपल देखा था डेटा साइंस का, राइट? व्हाट वाज इट? लेट्स से एक डेटा सेट है, राइट? ठीक है. इसके अंदर लेट्स से दिस एन IQ, दिस नंबर ऑफ स्टडी आवर्स, राइट? ठीक है. लेट्स से दिस इज अ पास और अ फेल. एक 90 है और पर्सन स्टडिंग 5 आवर्स विल बी फेल. पर्सन इज एन IQ ऑफ 110 स्टडिंग 8 आवर्स विल बी पास, राइट? तो क्या होता था भाई? आई यूज टू ड्रॉ दीज वेक्टर्स, राइट? आई टोल्ड यू गाइस, ठीक है. नाउ दिस इज अ डायरेक्शन टू इट. भाई 90 is the IQ of that person. 90 IQ is contributing, 90 of IQ is contributing to the my output feature. This is my output feature, right? So there's some sort of direction, right? Direction in order to give my output, right? Direction, there's, we are making trying to make some directions, right? 5 number of study hours is my 5 in order to give this direction to the output features, right? I'm trying to make some direction so that my output can be come, right? This is the sort of direction I'm making, right? So like this only we try to make some vectors, and this is the reason, this is the way in which we try to make sense of our direction, right? This is not a physical quantity, right? We are not talking about physics, right? It will actually have some sort of directions, right? But we make some sense from the direction, right? कि अगर month के बारे में बात करें तो this is some changes which I am able to see, some direction changes which I am able to see in the terms of whenever talking about months, right? और जब हम data set के बारे में बात करें तो IQ कितना contribute कर रहा है, IQ इस तरीके से contribute कर रहा है, right? इस तरीका is only called as a direction, in this way, in this direction is able to contribute to my output features, right? So this is what we call them as some sort of examples, which application examples which we have in vectors, right? Now there's some also needed to know about भाई vectors को represent कैसे करते, right? So let's just say that let's just say that there's a let's say मैं थोड़ी समय के लिए मैं अपने IQ को 1 से represent कर देता हूँ. Let's say for the sake of the example you guys can represent, let's say 5 है यहाँ पे 8 है, right? और नहीं तो सेम ही सेम हो जाएगा. लेट मी जस्ट मेक देम 6 एंड लेट मी मेक दिस 12, ठीक है? लाइक दिस आई मेड, राइट? नाउ आई वांट टू रिप्रेजेंट इनटू द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज आल्सो समथिंग व्हिच आई नीड टू नो, राइट? ये भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट होता है.
राइट. तो लाइक दिस आई ट्राई टू मेक दिस अ ग्राफ. ठीक है. नाउ लेट्स से दिस इज माई 0. ठीक है. 1 2 3 4 5 and 6. Let this makes values and smaller one only. ठीक है. दिस इज माई 2 3 राइट. और यहाँ पे भी मेरे पास पॉजिटिव वैल्यूज हैं. तो लेट्स से 1 2 3. नंबर ऑफ स्टडी आवर्स इज नथिंग बट माई 4 ओनली. 3 ओनली 4. ठीक है. लेट्स से दिस माई 4 and like further only it will be my 5, right? So I can represent these vectors, right? One vector will be my what? 2 and 5. Now the other vector will be what? My 3 and 4, right? This is my first feature vector, right? First vector. Second one is what? My second feature vector, right? So 2 is to 5, like this vector can be made, and this data point can be made, right? 3 4 will be where? 3 4 will be somewhere here, right? So now I have to make this vector, right? So what we do is in generally we make them as with the respect of the origin itself, right? So this is one of my vector, this is my sector vector, right? And this vector will represent this. What will be? It will be 2 5. This will be 3 and 4, right? So this is some ways in which we can derive we can represent our vectors in the term of graphic as well, right? Graphical format as well, right? So this is something which we need to know. By graphical representation भी आना चाहिए, right? It makes more sense, right? वो easily appealing होता है, right? Visually easily able to understand होता है, right? So we should know graphical representation of all this as well, right? या तो दिस इज़ वन थिंग, राइट. दिस इज़ वन थिंग, राइट, कि भाई वेक्टर्स कैसे बनते हैं, क्या एप्लीकेशन होती है, ग्राफिकली कैसे उनको रिप्रेजेंट किया जाता है, राइट. वाई दिस इज़ नीडेड, वाई बिकॉज कल को अगर मैं क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम करता हूँ, आई नीड टू ड्रॉ मल्टीपल डेटा पॉइंट्स, राइट. उसके बेसिस पे आई ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन. रिमेंबर आई टोल्ड यू गाइज अबाउट इट इन द लास्ट क्लास, राइट, कि हम लीनियरली सेपरेबल एक स्ट्रेट लाइन बनाते सो दैट माई डेटा पॉइंट्स कैन बी ईजिली क्लासीफाइड अमंग्स two different things, right? So that's the one thing, right? Now graphical representation is one thing, right? Now something called as unit vector, right? You guys remembered in the these are some things which I'm telling you guys one by one because मैं उतना आप लोग को बता दे रहा हूँ जितनी चीज़ें आपके दिमाग में कॉन्सेप्चुअली रिमाइंड हो जानी चाहिए पहले से, जो चीज़ें आगे चल करके काम यूज़ हो सकती है, राइट. ठीक है. ठीक. तो यूनिट वेक्टर हम लोग कुछ पढ़ते थे, राइट? समथिंग कॉल्ड एज unit vector, right? So let's say if I'm drawing a graph of a 3:3 vector, right? So how it will look like? Let's say this is my 0 1 2 and 3, 1 2 and 3, right? This is my graph will be, right? This is my vector will be, right, will be what? 3 3, right? What used to be the unit vector? Unit vector used to be another vector. एक और वेक्टर होता था ऑफ दिस, लेट्स से आई एम कॉलिंग दिस वेक्टर एज ए. तो यूनिट वेक्टर एक और ऐसा वेक्टर होता था इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिट ए वेक्टर ओनली, बट जिसका मैग्नीट्यूड जो हो दैट इज ओनली एंड ओनली अ सिंगल वन. ठीक है. यूनिट वेक्टर इज इन द डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर ओनली, जो भी ए जिसका भी हम यूनिट वेक्टर निकालते हैं, राइट, उसी की डायरेक्शन में वो वेक्टर हो, बट जो वेक्टर हो उसको मैं उसका जो मैं मैग्नीट्यूड निकालूँ, राइट, दैट हैज़ टू बी इक्वल टू, लेट्स अगर मैं ए कैप से इसको डोनेट करता हूँ तो इसका जो मैग्नीट्यूड आना चाहिए दैट शुड बी इक्वल टू 1. आई थिंक यू गाइस कैन आर इजीली एबल टू रिमाइंड देम, राइट. तो मैं क्या करता था, लेट्स से अगर मैं इसका यूनिट वेक्टर बनाना चाहूँ, राइट, 3 और 3 को अगर मैं फिजिक्स के रूप में, तो आप क्या लिखते थे, लेट्स से रिमेंबर गाइस 3i कैप प्लस 3j कैप, राइट. अभी कैसे आता था, अगर मैं सिंस वी आर वर्किंग इन द 2 डायमेंशंस ओनली, राइट, तो मेरा एक यूनिट वेक्टर यहाँ पे बनेगा, एक वेक्टर यहाँ पे बनेगा, यूनिट वेक्टर मेरा यहाँ पे बनेगा, राइट. ये वाला जो यूनिट वेक्टर बनेगा, सिंस दिस इज गोइंग इन द वे ऑफ एक्स एक्सिस एंड दिस इज इन द वाई एक्सिस, राइट, इसको मैं आई कैप बोलता था, राइट, और इसको मैं जे कैप बोलता था, राइट. तो अब ये वाला जो वेक्टर है, राइट, दिस इज 3 इन द एक्स एक्सिस, 3 इन एक्स एक्सिस एंड 3 इन वाई एक्सिस. तो इसका एक 3 इन एक्स एक्सिस कितना होगा भाई, एक अगर ये है तो 2 और 3. तो अगर मेरा एक ये सिंगल आई कैप है तो ये आई कैप दिस विल बी 3 आई कैप, right, and this since this is my one j cap, another j cap and another j cap, this will be 3 j cap, and this used to be a resultant vector, so I used to represent them in this like this 3 I cap plus 3 j cap. ठीक है. So this is all something which you guys also should know about it. ठीक है. Now we used to do, yeah, that's all it is. ठीक है. ये सब चीज़ें आपके दिमाग में थोड़ी रिमाइंड हो जानी चाहिए. This is the aim of this class, right? ठीक है. तो वेक्टर्स के बारे में क्विकली रिवाइज कर लेते हैं. वेक्टर क्या होता है, फिजिक्स के बारे में देखें तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस के बारे में होता है, राइट.
डेटा साइंस की बात करें तो इट्स अ ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ नंबर्स, राइट, इट्स अ ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ नंबर, इट कैन रिप्रेजेंट अ पॉइंट इन स्पेस विद अ मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटी अलॉन्ग विद इट्स डायरेक्शन, राइट, दिस वी ओनली नीड टू नो। एग्जाम्पल में बात करें तो एक फिजिक्स में डेटा साइंस में वी डोंट हैव सच समथिंग कॉल्ड एज डायरेक्शंस, राइट, वी ट्राई टू मेक सम सॉर्ट ऑफ सेंस विद द डायरेक्शंस, राइट, हम कुछ तरीके से डायरेक्शंस को समझने की कोशिश करते हैं। द एग्जाम्पल विच वी टुक, राइट, इट्स अ पर्सन वेट 75, 79, 85, 87 एंड थ्रू आउट दिस months is getting changed, right? So these months, this throughout this months is only something called as, this is the way of this weights are getting changed, right? तो way यानी तरीका means any some sort of directions which I'm able to make, right? That is only we, and this we'll be able to say it as a vector, and this are able to make sense out of the directions, right? Data science data set के cases में क्या था, we were making some vectors, right? और IQ is able to contribute this much to the output variable, right? Now contributing means what? This, it's giving some sort of direction to my आउटपुट, राइट, अगर मेरा एक आउटपुट है, अब मुझे कोई डायरेक्शन दे दे तो मैं उस मंजिल तक पहुंच जाऊंगा, राइट। सेम वे अगर मेरे को आउटपुट अपना वेरिएबल निकालना है, उसको कोई सॉर्ट ऑफ डायरेक्शन दे दे तो मेरा आउटपुट वेरिएबल आ जाएगा, राइट, तो मेरी आउटपुट की मंजिल आ जाएगी, राइट। अंडरस्टैंड इन दिस एनालॉजी इट विल बी इजियर, राइट। नाउ दिस इज द डायरेक्शन सेंस व्हिच आई एम एबल टू मेक इट, राइट। फर्दर वी वांटेड टू मेक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, वी गॉट टू नो कैसे बनाते हैं, राइट, ठीक है। यूनिट वेक्टर इज अ कॉन्सेप्ट व्हिच आई वाज ट्राइंग टू रिमाइंड यू गाइस अबाउट इट, राइट। नाउ now one more time, ठीक है। now let's move on to the last section of this class, right, some sort of operations which you also need to know about it, right, ठीक है, क्या क्या है, ठीक है, कौन कौन से operations मेरे को पता होने चाहिए, right। तो let's just quickly know about something called as, ठीक है, I'll write this topic name, something called as addition of vectors, right, ठीक है। this is the topic which I need to know, ठीक है। तो लेट्स से, मतलब मैं करके बता देता हूँ, ठीक है, यू गाइस मस्ट बी नोइंग अबाउट ऑल ऑफ दिस। लेट्स से दिस में वन वेक्टर कॉल्ड एज a इज इक्वल्स टू 4 and -3, ठीक है। यू गाइस कैन रिप्रेजेंट इन दिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस आल्सो, आप इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, राइट, और आप कैसे भी, डजंट मैटर, ठीक है, दैट्स द सेम थिंग ओनली, ठीक। और आप अपने b, लेट्स से एक और वेक्टर, लेट्स से इट्स 5 और 6, राइट, दिस इज द एग्जांपल व्हिच आई एम टेकिंग, राइट। इसको अगर मैं a plus b इसका एडिशन मेरे को निकालना है, तो व्हाट आई डू एलिमेंट बाय एलिमेंट एडिशंस, राइट। व्हाट वी डू इज एलिमेंट बाय, ठीक है, एलिमेंट बाय एलिमेंट एडिशन, राइट। सो दिस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट विल बी प्लस 4 plus is what 9, -3 plus 6 is again what is also called as 9, 3, right, 3, 6 minus 3 will be what, 3, right। So how addition of vectors gets done? It's nothing but it's element by element addition, right। let me rewrite this again, ठीक है, otherwise you will say सर आपने डेटा साइंस के साथ डॉक्टरी भी की हुई है क्या, इतनी अच्छी हैंड राइटिंग है आपकी, राइट। सो दिस इज समथिंग विच वी नीड टू नो, आई थिंक इट्स अ वेरी बेसिक थिंग, राइट, बट ग्राफिकली कोऑर्डिनेट के थ्रू समझना इट्स स्टिल स्लाइटली ट्रिकी, और इट्स एन इंपॉर्टेंट थिंग ऑल्सो विच यू नीड टू नो, राइट। लेट्स से आई विल ड्रॉ एक्सेस ग्राफ, राइट से, ठीक है, लेट्स से आई विल ड्रॉ एन एक्सेस ग्राफ, ठीक है। एक मेरा वेरिएबल, लेट्स से एक मेरे पास पॉइंट कौन कौन से हैं, मेरे पास पॉइंट है, ठीक है, 4, -3, ठीक है। तो पहला मेरे पास है, तो लेट्स से दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4 एंड दिस इज माई 5, राइट, ठीक है। और मेरे पास y में 6 तक जा रहा है, ठीक है। तो लेट्स से दिस इज माई 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, लेट्स से, ठीक है। और मेरे पास वैल्यू जा रहा है -1, -2 and -3, like this till this only which I needed, so let me draw till here only, ठीक है। तो क्या हो रहा है भाई, 4, -3 इज माई वेरी फर्स्ट पॉइंट, राइट। तो मेरा एक पॉइंट कहाँ बनेगा भाई, यहाँ पे कहीं पे बनेगा, राइट। और मेरा एक वेक्टर जो आएगा वो रीजन से यहाँ पर आएगा, ठीक है। और बी एक और वेक्टर है मेरा जो 5, 6 पे रिप्रेजेंट करता है, तो भाई वो यहाँ पर आएगा, राइट, ठीक है। और एडिशन इनका क्या दे रहा है भाई, इट्स गिविंग मी 9:3, राइट। तो लेट्स से अगर मेरे पास यहाँ पे और पॉइंट्स होते, राइट, 6, 7, 8 एंड फर्दर आई यूज टू हैव 9, राइट। तो मेरा जो पॉइंट बनता वो 9 और 3 यहाँ पे कहीं पे आता, राइट। तो दिस यूज टू बी माई, ये मेरा रिजल्टेंट वेक्टर आना चाहिए इन लोग का सम करने के बाद, राइट, ठीक है। तो ये मेरा रिजल्टेंट है। एक्चुअली ये वर्क कैसे करता है, लेट्स आई विल रिप्रेजेंट देम इन द कोऑर्डिनेट एक्सिस फॉर्मेट ओनली। दिस इज माई नथिंग बट माई 5, 6, दिस नथिंग बट माई 4, -3, राइट। ये और मेरा आंसर क्या आ रहा है भाई, 9:9, 3, तो ये एक्चुअली में काम कैसे कर रहा है, ठीक है, इसको समझना, ठीक है। लेट्स से मैं इस वाले वेक्टर को पकड़ लेता हूँ, लेट्स से मैंने इस वाले वेक्टर को पकड़ लिया, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, इसमें 5, 6 ऐड कर दो, ठीक है।
तो इस वाले से मैं सबसे पहले 4, -3 से मैं सबसे पहले तो भाई 5 ऐड करूँगा, एक्स एक्सिस में मैं 5 ऐड करूँगा, तो मैं कहाँ पहुँचूँगा भाई, यहाँ लेट से मैं 4 पे था तो मैं एक आगे बढ़ाया 5 पे पहुँचा, 6 पे पहुँचूंगा, 7 पे पहुँचूंगा, 8 पे पहुँचूंगा, 9 पे पहुँचूंगा, राइट। तो मैं इस वाले जितना मुझे प्लस करना था इसका मैंने एक्स एक्सेस प्लस कर लिया, राइट। अब मुझे इसमें 6 और प्लस करना है, आई वॉन्ट टू एड वाई ऑल्सो, राइट। तो मैं अभी -3 पे ही हूँ, वाई में तो -3 पे हूँ, फिर मैं एक और ऊपर जाऊँगा तो -2 पे आऊँगा, एक और जाऊँगा तो -1 पे आऊँगा, एक और ऊपर जाऊँगा तो 0 पे आऊँगा, 3 पे अभी मैं 0 पे पहुँचा हूँ, मुझे 6 प्लस करने, राइट। फिर एक और ऐड करूँगा, फिर एक और ऐड करूँगा, फिर एक और ऐड करूँगा, तब जाके मैं इवेंचुअली इस पॉइंट पे पहुँचूंगा, राइट। सो दिस इज द ओनली थिंग, राइट। अगर मैं इस वाले वेक्टर को पकड़ता तो मैं क्या करता, मैं इस वाले को वेक्टर पकड़ लिया, मुझे 4 क्या बोलते हैं एक्स एक्सिस में जाना है, तो मैं एक आगे जाता, फिर 2 आगे जाता, फिर 3 जाता, फिर 4 जाता, इस तरीके से तो मैं 9 पे पहुंचता, राइट। और फिर मैं क्या करता, मुझे 3 नीचे जाना है तो मैं 1 नीचे जाता, 2 नीचे जाता और 3 नीचे जाता, अगेन मैं इसी पॉइंट पे पहुंचता, राइट। सो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे कैसे काम करता है, वी ट्राई टू टेक वन एज अ रेफरेंस वेक्टर, राइट। From that we try to add x axis number of things whichever we want to add, right। मैं एक को पकड़ के दूसरे में मेरे पास जितना x contribution है that I'll try to add in the x axis direction only after reaching to the final output of the x direction, then from there I'll try to add the y direction also, that will be able to give me my the final resultant x and y, right। so this is a coordinate axis format which we try to visualize them also, right। तो या दैट्स अ थिंग, ठीक है। एडिशन ऑफ वेक्टर्स कैसे काम करता है, यू हैव टू नो अबाउट इट, ठीक ना। इसका काम कहाँ पर आता है, लेट जस्ट ट्राई टू नो अबाउट इट, ठीक है। तो फॉर द टाइम बिंग जस्ट नो अबाउट इट, डेटा रिप्रेजेंटेशन में आता है, ठीक है। डेटा एग्रीगेशन में आता है, यस, मतलब इट विल कम अंडर दिस ओनली, ठीक है। एनएलपी के अंदर में आता है और इमेज प्रोसेसिंग के अंदर में आता है, राइट। इन दिस फॉर्मेट दिस कम्स, राइट। नाउ क्या चीज़ है, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब लेट्स जस्ट से दैट एग्जांपल आई वुड लाइक टू गिव यू गाइस, लेट्स से मेरा एक वर्ड है डेटा, लेट्स जस्ट गो विद द चैनल नेम ओनली, लेट्स जस्ट द नेम ऑफ द चैनल इज न्यूरल माइंड्स, राइट। तो मैंने न्यूरल को विद सम मैथमेटिकल ऑपरेशन आई ट्राइड कन्वर्टिंग दिस इन द वेक्टर्स, राइट। तो मेरे पास क्या आ गया भाई, वेक्टर है, लेट्स जस्ट से 0.4, 0.5 एंड -0.1, राइट। लाइक दिस आई वॉज एबल टू मेक सेंस फ्रॉम द न्यूरल को, जब मैंने अपने मॉडल को दिया उसने भाई मेरे को ला करके ये अपना वेक्टर दे दिया, ठीक है भाई। जब मैं किसी भी टेक्स्ट प्रोसेसिंग टाइप के मॉडल में काम कर रहा हूँ, राइट, लेट्स से चैट जीपीटी, एलएलएम है, बेस वो टेक्स्ट दे रहे हो, इवेंचुअली तो उसमें भी वेक्टर बन रहा है, तभी जाकर के मेरे पास आउटपुट आ रहा है, राइट। तो लेट्स से मैंने न्यूरल करके एक वर्ड दिया टू द मॉडल, इट वॉज एबल टू गिव मी दिस वेक्टर, राइट। फर्दर आई गिव माइंड्स ऑल्सो, और माइंड्स को भी उसने कुछ 0.5, 0.6 माइनस लेट्स से -0.6 एंड दिस वाज माय -0.2, ठीक। लाइक दिस इज एबल टू कन्वर्ट मी दिस वेक्टर, इसने ये वेक्टर बना दिया मेरे मॉडल ने, राइट। बट मुझे तो अलग अलग वर्ड्स का मतलब नहीं चाहिए था ना, मुझे तो कंबाइंडली न्यूरल माइंड्स का मतलब चाहिए था, राइट। भाई न्यूरल माइंड्स टुगेदर क्या काम करता है, राइट, टुगेदर उसके अंदर में क्या सेंस है, राइट। अगर मैं बोलूँ न्यूरल अलग है, माइंड से अलग है, बट न्यूरल माइंड्स तो एक चैनल का नाम है, ठीक है, आप जिस पे पढ़ रहे हो, राइट। न्यूरल अलग मतलब होता है, माइंड से अलग होता है, न्यूरल माइंड्स का चैनल का। तो व्हाट वी डू इज वी सम दिस करस्पॉन्डिंग वैल्यूज सो दैट वी कैन ट्राई, लेट्स से मैं क्या करूँगा, करस्पॉन्डिंग वैल्यूज को, तो 0.4, 0.5 को मैं प्लस करूँगा तो ये 0.9 हो जाएगा, राइट। 0.5 -0.6 करूँ तो -0.1 हो जाएगा, और 0.3 को -0.3 हो जाएगा, राइट। दिस इज द मीनिंग which will be the meaning of neural minds, right? This is the meaning which will, but neural minds are separately different thing, but neural minds together is also a separate thing, right? So inka vector along, how we are able to make this out of it, we try to add them, right? So this is also another example which you guys can know about it, right? So that thing image processing में आता है, right? Now image processing में क्या होता है भाई, images के अंदर में मेरे पास red channels होते हैं, blue channels होते हैं, I have some ग्रीन चैनल्स ऑल्सो, राइट, यू गाइज नो अबाउट इट, 3 लेयर्स होती है हमारे पास, राइट। उसमें भी वी ट्राई टू एड दीज इन ऑर्डर टू कन्वर्ट देम इनटू द ग्रे स्केल, राइट। ग्रे स्केल के लिए वी ट्राई टू स्केल देम, राइट। नाउ दैट्स ऑल्सो वी डू विद द हेल्प ऑफ वेक्टर्स के ऑपरेशंस के हेल्प के थ्रू ओनली, राइट। So that's all the thing is with respect to addition of the vectors. I'm trying to cover them as a slightly faster because I think mathematically everyone knows about them कि addition of vectors कैसे काम करता है, but yeah we need to know about them in terms of application wise also, that I'm trying to give you guys the glimpse of it, right. तो graphical representation which you understood, right, कहाँ काम आता है we understood, in data representation, data aggregation, NLP, image processing and XYZ, many places also it can be.
ठीक है. एग्जाम्पल आई ट्राई टू गिव कि भाई न्यूरल इन इटसेल्फ कैन हैव अ डिफरेंट मीनिंग, माइंड्स इन इटसेल्फ कैन हैव अ डिफरेंट मीनिंग, बट न्यूरल माइंड्स कैन सेपरेटली कैन ऑल्सो हैव अ डिफरेंट मीनिंग, राइट. सो न्यूरल और माइंड्स का जो भी वेक्टर्स आता है वी ट्राई टू ऐड देम इन ऑर्डर टू मेक द सेंस ऑफ टुगेदर दिस वर्ड. उन दोनों के सेंस टुगेदर उनकी मीनिंग से वी ट्राई टू डिराइव द मीनिंग ऑफ दिस कंबाइंड वर्ड्स, राइट. सो या दैट्स द थिंग, राइट. नाउ दिस इज द मीनिंग ऑफ एडिशन ऑफ वर्ड्स, राइट. और अब चलते हैं अनदर टॉपिक इधर विच वी कॉल देम एज multiplication of I'll take another page only separately, yeah, ठीक है. something called as multiplication of vectors, ठीक है. multiplication of vectors will be ठीक है something called as this, ठीक है. now within multiplication we have three types of multiplication, right. something called as dot product, ठीक है. second one will be element wise multiplication, and third one is scale multiplication, scalar multiplication, right. The today's class we will be focusing on this dot product, and in the coming class we will be seeing different things also, right. So let's just start with dot product, ठीक है, जो हम पढ़ना चाहते हैं, राइट. ठीक है, ठीक है. और तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है भाई, 11th-12th में हम लोगों ने जो पढ़ा था द सेम द मीनिंग ऑल्सो कम्स हियर, राइट. कि डॉट प्रोडक्ट जो होता है इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, भाई स्केलर क्वांटिटी होता है, राइट. और ये निकाला कैसे जाता है, इट्स द मल्टीप्लीकेशन ऑफ, इफ आई वुड राइट इन द summation of the multiplication of corresponding elements, ठीक है. कि भाई करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मैं मल्टीप्लिकेशन करूंगा बट टुगेदर मैं उन सबका समेशन करूंगा, राइट. जस्ट फॉर द सेक ऑफ द एग्जांपल जस्ट दिस इज अ वेक्टर, राइट. ठीक है. another vector this is let's say 5, 6, ठीक है. this is 2, 3, ठीक है. या तो मैं a डॉट b करूँगा अगर इस केस में, तो मैं क्या करूँगा 2 into 5 आई डू 10 एलिमेंट वाइज मेरा मल्टीप्लिकेशन कर लिया ना, आई डू अ समेशन, राइट. एंड 3 into 5 will be what, 3 into 6 will be what, 18. so this will be give me a 28 as my dot product, right. so like this I need to know, like this I need to get it, right. but थोड़ा सा सेंस बनाते हैं मैथमेटिकली, राइट. अगर मैं इसको वेक्टरली मैट्रिसेस के बेस में रिप्रेजेंट करूँ, बिकॉज मैं मैट्रिसेस नथिंग ऑल्सो इट्स अ टन्स ऑफ वेक्टर्स, राइट. तो मैं अगर इसको मैट्रिक्स मैं इसको क्या लिखूँगा भाई 2:1, करेक्ट. मैं इसको भी क्या लिखूँगा भाई 2:1, ठीक है. नाउ मैट्रिसेस का हम एक रूल जानते थे, राइट. व्हाट वाज दिस रूल इज कि भाई जो भी अगर मेरे पास अगर मेरे को उसको मल्टीप्लाई करना है इवेंचुअली, तो दिस नीड्स टू बी द सेम थिंग, बट हियर इट्स गेटिंग क्लैश्ड. तो मैं क्या करता हूँ इस चीज़ को थोड़ा स्पेसिफिकली कर लेता हूँ कि मैं इसको a डॉट b ट्रांसपोज करता हूँ, राइट. तो मेरा a क्या हो जाएगा भाई 2, 3, मेरा b क्या हो जाएगा 5 और 6. नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज माय 2:1, दिस इज माय व्हाट 1:2, दिस इज माय 1:2, right. now I can get this value, now these are same, now I can perform these values and can my final value, like this is how I can make the sense out of it and can be able to get my value, right. so yeah, that's the one thing, right. dot product कैसे calculate करता है, I think you guys know about it, right, nicely only, ठीक है. now let's try to make the sense of it in the terms of graphical representation as well, right. graphically क्या मतलब होता है इसका, right. तो let's just say this is the only graph vectors I am having, right. let's just say I am trying to represent them, ठीक है. let's just say this is my 1, 2, ठीक है. तो 1, 2, 3, 4, 5 and 6, ठीक है. तो यहाँ पर 3 है, 4, लाइक दिस आई एम हैविंग 2 पॉइंट्स, तो 2,3 मेरा कहाँ पे आएगा भाई, यहाँ पर आएगा. और मेरा 5,6 कहाँ पे आएगा भाई, x की वैल्यू 5 होनी चाहिए, तो लेट्स से दिस में 5, तो 5,6 मेरा समवेयर यहाँ पर आएगा, राइट. तो दिस माय वन वेक्टर, अनदर वेक्टर लाइक दिस आई एम हैविंग दिस a वेक्टर, इसमें b वेक्टर, राइट. तो इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, इसको मैं एक फॉर्मूले के थ्रू से आपको समझाऊंगा, आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा उस केसेस में, राइट. तो a वेक्टर लेट्स से दिस वेक्टर, राइट. वेक्टर हैज़ टू हैव अ डायरेक्शन, राइट. तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर क्या होता है भाई मेरा
ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है लेंथ ऑफ प्रोजेक्टेड बी वेक्टर, ठीक है, इनटू लेंथ ऑफ ए वेक्टर इन एक्स एक्सिस, ठीक है, प्लस लेंथ ऑफ प्रोजेक्टेड बी वेक्टर इनटू लेंथ ऑफ प्रोजेक्टेड ए वेक्टर इन वाई एक्सिस. दिस इज द ओनली विच वी कॉल्ड एज ए इंटू ए डॉट बी वेक्टर. यहाँ पे भी हम कर ही क्या रहे हैं, इवेंचुअली तो यही करते हैं भाई, एक्स एक्सिस वाले को एक्स वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर सम करते हैं, और बी वाले को बी वाले से मल्टीप्लाई करते हैं. बट इसको थोड़ा सा चीज़ें समझ लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर समझ में आ जाएगा, राइट, ग्राफिकली, राइट. तो ए वेक्टर मेरा क्या है भाई, ए वेक्टर मेरा कुछ नहीं है, 2,3 है, ठीक है, और कोऑर्डिनेट की बेसिस पे आई ट्राई टू रिप्रेजेंट देम, ठीक है. और बी मेरा क्या है भाई, 5,6 है, राइट. तो अगर मैं बोलूँ कि ये मेरा, तो अगर मैं बोलूँ कि भाई मेरा जो बी का जो लेंथ आएगा इन द एक्स एक्सिस विल बी व्हाट, और मैं इसका एक डिवीजन बनाऊँ तो बी वाला का मेरा एक्स एक्सिस में जो रिफ्लेक्शन आएगा, पोजीशन आएगा, इट विल बी 5, करेक्ट. यहाँ पे 5 में गिरेगा, राइट. और वाई एक्सिस में क्या आएगा, 6. तो मैं इन वैल्यूज़ को क्या करता हूँ, रिप्रेजेंट कर सब्स्टिट्यूट करता हूँ. लेंथ ऑफ प्रोजेक्टेड बी वेक्टर विल बी व्हाट, 5, और यहाँ पे वाई एक्सिस में क्या आएगा भाई, 6 आएगा, करेक्ट. सेम वे ए वेक्टर का एक्स एक्सिस में क्या आएगा, 2, ठीक है, और वाई एक्सिस में क्या आएगा भाई मेरा 3. अब मैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करूँगा तो 5 × 2 10 हो जाएगा, और ये 18 हो जाएगा. तो 10 + 28 विल बी अगेन गिव यू 28 ओनली माई आंसर, राइट. सो दिस द थिंग, ठीक है. मैं अगर डॉट प्रोडक्ट को बोलता हूँ ग्राफिकली तो क्या बोलते हैं भाई उसको, लेंथ ऑफ प्रोजेक्टेड बी वेक्टर इनटू द लेंथ ऑफ प्रोजेक्टेड ए वेक्टर. जो भी वेक्टर है मेरा उसका एक्स एक्सिस में क्या प्रोजेक्शन आ रहा है, दोनों वेक्टर का मल्टीप्लाई करूँगा मैं, और वाई एक्सिस में उनका क्या वैल्यू आ रहा है उनको आपस में मल्टीप्लाई करूँगा, टुगेदर मैं उनको सम कर दूंगा. लाइक दिस ओनली आई विल बी एबल टू गेट माई रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस ग्राफिकल वैल्यू ऑल्सो, ठीक है. नाउ द टाइम टू नो अबाउट दिस, ठीक है. तो ये समझ में आ गया मेरे को कि भाई डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है. डॉट प्रोडक्ट क्या होता है वो वैसे भी आप लोगों को पता था, राइट. थोड़ा बहुत सब कुछ ज्ञान होता है इस बारे में, ठीक है. बट ग्राफिकली क्या मतलब होता है उसका, कि भाई किसी भी वेक्टर का प्रोजेक्शन इन द एक्स एक्सिस का, आपस में जितने भी वेक्टर्स हैं उनका मल्टीप्लिकेशन, और वाई एक्सिस में क्या उनका प्रोजेक्शन है उनका आपस में मल्टीप्लिकेशन प्लस थ्रू आउट टुगेदर सबका एडिशन, राइट. दिस इज द मीनिंग ऑफ ग्राफिकली जो हम उसको बोलते हैं, राइट. नाउ एक एग्जांपल के बारे में मैं इसका बात करता हूँ आप लोग का, ठीक है. आप लोग को अच्छे समझ में आ जाएगा, राइट, ठीक है. जैसे वी आर वॉचिंग बिंज वॉचिंग अ नेटफ्लिक्स सीरीज, ठीक है, ठीक है. मैं कोई वेब सीरीज़ देख रहा हूँ लेट्स से, ठीक है. तो मेरी जो फेवरेट वेब सीरीज़ है डार्क, नेटफ्लिक्स पे, आई टेक दिस ओनली इनटू द कंसिडरेशन, ठीक है. लेट्स से डार्क, आई डोंट नो हाउ मेनी यू सीन इट, बट या दैट्स माय फेवरेट, ठीक है. इट्स अ साइंस फिक्शन बेस्ड वेब सीरीज, राइट. साइंस फिक्शन वेब सीरीज है ये, राइट. नाउ इफ यू गाइज हैव यूज्ड नेटफ्लिक्स, यू गाइज मस्ट बी नोइंग अबाउट इट कि भाई कैसे काम करता है नेटफ्लिक्स इंटरनली, राइट. कि अगर मैं डार्क एज अ वेब सीरीज देख रहा हूँ, राइट, और साइंस फिक्शन कैटेगरी के अंदर भी आता है ये, तो मैं जब भी देख रहा होता हूँ उसको, तो ये मेरे को क्या करता है और वेब सीरीज सजेस्ट करने लगता है. लेट्स से साइंस फिक्शन में और कौन सी मेरे पास आएगी, लॉक एंड की आ जाएगी, ठीक है. लेट्स से और कोई सी एक और बता देता हूँ. लेट्स से इट विल बी साइंस फिक्शन में स्ट्रेंजर थिंग्स आ जाएगी, राइट. मेरे पास लॉस्ट इन स्पेस आ जाएगी, ठीक है. लाइक दिस आई कैन गेट सो मैनी रिकमेंडेशन ऑफ द मूवीज, राइट. लाइक दैट्स हाउ द नेटफ्लिक्स वर्क्स. कि अगर मैं कोई वेब सीरीज देख रहा हूँ, कोई मूवी देख रहा हूँ, या कोई भी जॉनरा की मूवी या वेब सीरीज देख रहा हूँ, राइट, अगर मैं वो ज़्यादा देखने लगता हूँ तो मेरे को नेटफ्लिक्स उसी टाइप की सिमिलर मूवीज सजेस्ट करने लगता है, राइट. ना हाउ दिस वर्क्स, राइट, ना हाउ दिस वर्क्स, दैट्स विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, राइट. वो कैसे काम करता है, दैट विल ओनली ट्राई टू लेट जस्ट से दैट कि भाई मैं कोई वेक्टर देख रहा हूँ, कोई भी सॉरी वेक्टर नहीं देख रहा हूँ, सॉरी मूवी देख रहा हूँ, लेट्स से मैं डार्क देख रहा हूँ, ठीक है. नाउ उनका लेट जस्ट से नेटफ्लिक्स भी तो इंटरनली कोई रिकमेंडेशन सिस्टम अपना बिल्ड किया होगा, राइट. उसने भी कोई रिकमेंडेशन मैथमेटिकल मॉडल या कुछ भी उसने XYZ चीज़ें लगाई होंगी, और उसने अपना कोई ना कोई मॉडल बनाया हुआ, राइट. बट हम क्योंकि AI पढ़ रहे हैं तो लेट से उनका जो रिकमेंडेशन सिस्टम दैट इज बेस्ड आउट ऑफ द AI इटसेल्फ, राइट. कि वो AI की बेसिस पे चीज़ें स्टडी करते हैं, हम जो भी चीज़ें देखते हैं वो AI में एज एन इनपुट जाती है, और वो हमको आउटपुट दे पाता है बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन मूवीज़ जो उसको देना होता है, राइट. दैट्स उसका आउटपुट है वो रिकमेंडेशन मॉडल, राइट. तो लेट्स से मैं अपनी डार्क वेब सीरीज को रिप्रेजेंट करता हूँ इन द टर्म्स ऑफ वेक्टर, राइट. लेट्स से इसको मैं वेक्टरली रिप्रेजेंट करता हूँ, राइट. लेट्स से दिस वाज मैं 1 2 3 4, राइट. लेट्स से डार्क में ये थोड़ा इतना साइंस फिक्शन है, ठीक है. दिस मच इज दिस ड्रामा, ठीक है. लेट दिस मच इज दिस थ्रिलर, दिस मच इज दिस रोमांस, ठीक है.
आई कैन हैव मल्टीपल फीचर्स ऑफ माई वेब सीरीज, राइट, कई चीज़ हो सकती है उसके अंदर में, राइट, बट फॉर द टाइम बिंग लेट्स जस्ट से दैट मेरी डार्क की वेब सीरीज़ को मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट करता हूँ, राइट, इस तरीके से मैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, राइट। नाउ लेट्स से अब क्या हो रहा है भाई, अब मुझे ऐसी, अब मेरे पास ये सारी वेब सीरीज़ भी हैं, राइट, लेट्स से मेरे पास लॉक एंड की भी है, ठीक है, और कई सारी हैं। तो लेट्स से मैं लॉक एंड की का जब वेक्टर बनाता हूँ, तो उसने वेक्टर बनाया लॉक एंड की का लेट्स से 2 3 4 एंड 2, इस तरीके से उसने उसका वेक्टर बनाया, ठीक है। नाउ अगर मैं इनके आपस में सिमिलैरिटी मेरे देखना चाहता हूँ, राइट, अगर मेरे पास इन दोनों के वेक्टर्स के बीच की सिमिलैरिटी मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ, राइट, अगर उनकी सिमिलैरिटी ज़्यादा होगी, आई रिकमेंड दैट्स टू द पर्सन, राइट, मैं जो भी डार्क दिख रहा होगा मैं उसको लॉक एंड की सजेस्ट कर दूंगा। बट अगर उनकी सिमिलैरिटी कम होगी तो मैं क्या करूँगा, उसको सजेस्ट नहीं करूँगा, सिंपल है। तो दिस सिमिलैरिटी ओनली वी आर एबल टू फाइंड इट विद द फॉर्मूला ऑफ द कॉन्सेप्ट वी कॉल्ड एज समथिंग कॉल्ड एज कोसाइन सिमिलैरिटी भाई, समथिंग कॉल्ड एज कोसाइन मेरे सिमिलैरिटी। इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, कुछ नहीं होता है, कॉस थीटा का फॉर्मूला लगा दो भाई, बात खत्म, ठीक है। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है सर वो बता दो, भूल गया हूँ मैं। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए का मॉड्यूलस, राइट, एंड मल्टीप्लाई बाय बी का मॉड्यूलस, राइट। फाइंड दिस वैल्यू ऑफ दिस कॉस थीटा, राइट, जितना भी वैल्यू आएगा दैट इज द ओनली नंबर ऑफ दैट विल बी ओनली द परसेंटेज, जितना वो आपस में कनेक्टेड है, जितना आपस में उनके बीच में रिलेशन जितना ज़्यादा होगा। अगर ज़्यादा है तो आई रिकमेंड दिस टू द पर्सन, राइट, इफ इट विल नॉट बी मोर, राइट, तो ज़्यादा नहीं होगा तो मैं उसको क्या करूँगा, सजेस्ट ही नहीं करूँगा, राइट। फॉर द टाइम बिंग लेट्स जस्ट टेक दिस एग्जांपल, यहाँ पे हमने डार्क को इससे रिप्रेजेंट किया हुआ है और लॉक एंड की को इससे रिप्रेजेंट किया। आई ऑल्सो डोंट नो, ठीक है, क्या आंसर आने वाले, बट लेट्स जस्ट डू इट, ठीक है, क्या होगा, ठीक है। ए और वी का वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, लेट्स से कॉस थीटा ओनली आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट, ठीक है। ए करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करूँगा तो मैं 1 इंटू 2 क्या आएगा भाई, 2 आएगा, ठीक है। 2 इंटू 3 क्या आएगा भाई, 6 आएगा, ठीक है। 3 इंटू 4 क्या आएगा भाई मेरा 12 आएगा, ठीक है। 4 इंटू 2 क्या आएगा भाई मेरा 8 आएगा, राइट। अगर मैं इसका मॉड्यूलस निकालना चाहूँगा एक, तो वेक्टर ए का मेरे पास मॉड्यूलस क्या आएगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 4 5 प्लस 14 प्लस 16 इज 30, रूट 30 क्या हो जाएगा मेरे पास, ये रूट 30 हो जाएगा। और इनटू में बी क्या होगा, 4 4 9 16 और 4 20 29 33। आई डोंट से दैट यू डोंट नो अबाउट दिस ऑल्सो, ठीक है, आई एम होपिंग इतना सबको आता है, राइट। तो ये क्या हो जाएगा भाई, ऊपर वाला हो जाएगा 2 + 6 8 20 28 बाय रूट 30 333, और ये हो जाएगा 36 66 और 99, तो मेरा 990 आएगा। जस्ट से दैट इसको मैं थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेटली 1000 ही मान लेता हूँ, या फिर 990 है तो मैं इसको 961 मान लेता हूँ, ठीक है। दिस विल बी एबल टू गिव मी द डिजायर्ड। तो मेरे पास ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, 31 का स्क्वायर इट इज़, राइट। तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा 28/31, राइट। अब मैं क्या कर लेता हूँ, इसकी मैं वैल्यू जब भी निकालूंगा तो दिस विल बी समवेयर अराउंड, इट विल कम एज 0.8 और 0.9 के आसपास, ये अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू है, राइट, 0.8 और 0.9 के आसपास। ना कॉस थीटा 0.8 की मतलब क्या हो गया भाई, कॉस थीटा 0.8 मतलब क्या हो गया, कॉस थीटा 1 कब होता है, कॉस थीटा 1 होता है मेरा जब थीटा की वैल्यू भाई 0 होती है। तो कॉस थीटा जो, तो मतलब 0.8 के 0.9 के आसपास आ रहा है, यानी थीटा मेरा लेट्स से 5 डिग्री होगा या 10 डिग्री होगा, राइट, क्योंकि 0 पे तो 1 आंसर आ जाता है, थीटा 0 पे तो मेरे पास 1 आंसर आ जाता है, राइट। और 0.8 0.9 है, इसका मतलब अप्रॉक्सीमेटली आई एम कैलकुलेटिंग, आई एम नॉट डूइंग द एक्चुअल, आप लोग देख सकते हो, राइट। तो मेरे पास थीटा की वैल्यू क्या आएगी भाई, 5-10% के आसपास आएगी, राइट, 5-10% के आसपास आएगी, राइट। सो ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, मेरे पास 0.8 यानी 80% मेरे पास जो 80% मेरे पास 80, अगर 0.8 आ रहा है, आई ट्राई टू कन्वर्ट देम इनटू द परसेंटेज, तो मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। इसका मतलब क्या है, लॉक एंड की इज माई 80% मेल खाती है, 80% इट मैचेस विथ माई डार्क वेब सीरीज, राइट। सो आई रिकमेंड दिस टू द पर्सन 100%, यस, क्योंकि इसका परसेंटेज ज़्यादा है, राइट। तो इसका मतलब क्या है, अगर मेरे को कॉस थीटा को अपने बढ़ाना है तो मेरे को थीटा को घटाना होगा, राइट, क्योंकि थीटा जितना कम होगा कॉस थीटा की वैल्यू उतनी ज़्यादा आएगी, राइट। तो अगर मेरा कॉस थीटा जितना ज़्यादा होगा, विच विल बी मीनिंग एज कि मैं उतना ज़्यादा मेरा दीज वेक्टर्स आर को रिलेटेड, राइट, दैट्स द थिंग, ठीक है, कि अगर मेरे वेक्टर्स जितने ज़्यादा रिलेटेड हैं, आई रिकमेंड दिस टू द पर्सन, राइट। दैट्स हाउ द रिकमेंडेशन सिस्टम वर्क्स गाइस। आई थिंक यू गाइस गेट टू नो अबाउट ऑल ऑफ दिस, राइट, समझ में आ गया आप लोगों को क्या इसका मतलब होता है, राइट। यस, तो दिस इज व्हाट इट इज, ठीक है, कि मैं क्या किया, मैंने कॉस थीटा का वैल्यू, नाउ दिस गाइस रिमेंबर दिस ऑलवेज, राइट, आप जब डीप लर्निंग में भी पढ़ रहे होगे बिटवीन एनी ऑफ दिस वेक्टर्स, राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मेरा डार्क का वेक्टर यहाँ कहीं आता था, लाइक इफ आई एम ट्राइंग टू कन्वर्ट देम इनटू द 2D डायमेंशंस, राइट, that I can do this. Now currently I am having 4 features and dark and lock and key both, right, 4 features, but I can convert them into 2 dimensions as well with the help of dimensionality reduction concept, right.
समथिंग कॉल्ड PCA इज वी आर हैविंग, राइट। तो यहाँ पे मेरा अगर ये डार्क का वेब था तो ये मेरे पास क्या था भाई, ये मेरा लॉक एंड की पे था, और इनके बीच का जो थीटा था वो बहुत छोटा था। दैट इज द रीजन दे वर मोस्टली सिमिलर, राइट। तो थीटा जितना सिमिलर होगा उनकी सिमिलरिटी उतनी ज़्यादा होगी, राइट। सो रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट कॉल्ड द कोसाइन सिमिलरिटी। यू विल ऑल्सो बी लर्निंग इन द टाइम व्हेन यू विल लर्न समथिंग कॉल्ड एज डीप लर्निंग, वहाँ पे भी कोसाइन सिमिलरिटी की जैसी चीज़ें यहाँ पे यूज होगी, राइट। सो दिस इज अ वेरी गुड एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट, राइट। डॉट प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन होता है, राइट। So remember this always, right? This is one example application which I wanted to tell you guys about it. Now this element wide multiplication, scalar multiplication, we'll be learning in the very next class, right? This is what we was having for today's class. We get to know about this. Let's just see a glimpse of it, whatever we learned today, right? So the very first we discussed about linear algebra, क्या होता है, उनकी definition क्या होती है, application क्या होता है, right? ठीक है, कहाँ का यूज़ होता है, तो डेपर रिप्रेजेंटेशन में होता है, कई जगह यूज़ होता है, राइट। मशीन लर्निंग में यूज़ होता है, न्यूरल नेटवर्क्स में यूज़ होता है, राइट। रिमेंबर दिस, मशीन लर्निंग में यूज़ होता है, न्यूरल नेटवर्क में यूज़ होता है, राइट। कैसे यूज़ होता है, दैट इज फॉर द टाइम बिंग डोंट नीड टू नो अबाउट इट, अदरवाइज वो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, राइट। बट कैसे यूज़ होता है, दिस इज समथिंग विच यू नीड टू नो। देन वी फर्दर मूव ऑन टू द स्केलर्स, राइट। स्केलर्स क्या होती हैं, द वैल्यू द सिंगल सेपरेट वैल्यूज आर कॉल्ड एज स्केलर्स, राइट, जिनके अंदर कोई डायरेक्शन नहीं होती, राइट। तो हमारे मॉडल्स के अंदर में ML में कैसे काम आती हैं, राइट, ये उनकी जो समरी के काम आती है, या मॉडल से मुझे कुछ फीचर्स कुछ गेन करना, नॉलेज गेन करना, मेरा डेटा सेट कैसा है, मॉडल कैसा है, वी ट्राई टू गेट टू नो अबाउट दिस सेंट्रल टेंडेंसीज, राइट। दैट्स द आंसर विच वी गेट इन द टर्म दिस इज सेपरेट single value, right, so that we also call as scalar values. Then we move on to the something called as vectors, right. वेक्टर्स में हम लोगों ने देखा, राइट, कि वेक्टर्स की डेफिनेशन क्या है, एग्जांपल्स देखे, राइट, कि भाई वेक्टर्स में डायरेक्शन का मतलब सिंपली ये नहीं होता है, राइट, कि एक्चुअली में ईस्ट में जा रहा है या इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। डायरेक्शन मीन्स इट्स ट्राई टू मेक सम सॉर्ट ऑफ सेंस फ्रॉम द डायरेक्शन, राइट, कि एक थ्रू आउट द इंक्लिनेशन कैसे मेरी चीज़ें बढ़ रही हैं, दिस सम डायरेक्शन हैज़ टू बी देयर, राइट। मेरे को अगर आउटपुट चाहिए तो उस रास्ते पे मैं कैसे जा सकता हूँ, राइट। देयर शुड बी सम डायरेक्शंस फॉर द आउटपुट ऑल्सो टू इनपुट ऑल्सो, ठीक है। अगर मेरे पास IQ एक इनपुट है तो मैं उसको पास तक कैसे ले सकता हूँ, देयर शुड बी सम डायरेक्शंस, राइट। दैट्स हाउ वी सम मेक सॉर्ट ऑफ सम directions, some senses, right. We got to know about something called as unit vector, right. Unit vector is something which you need to know just for the sake of the example, for the remembering of the previous things, right. I just give unit vector होता क्या, right. Then we move to operations, we learned, right. Addition of the vector was the very first one, ठीक है। क्या होता है, कैसे होता है, राइट, कहाँ काम आता है, डेटा रिप्रेजेंटेशन, NLP इमेज प्रोसेसिंग में होता है, ठीक है। कैसे उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो कि आप एक वेक्टर को सिंगल पकड़ लो और दूसरे वाले का जितना x होता है तो उसके x में आगे चले जाओ पहले वाले के, और फिर y में आप ऊपर मूव कर जाओ, आपको अपना फाइनल वेक्टर मिल जाएगा, राइट। उसका कहाँ पे काम आता है भाई, कि अगर मैं दो वर्ड्स को कॉन्केट करना चाहता हूँ, उनका मतलब निकालना चाहता हूँ, तो मेरे पास अगर दोनों वर्ड का सेपरेट मीनिंग आई हैव, राइट, सो आई सम ऑल द करस्पॉन्डिंग फीचर्स ऑफ देम, करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ देम, सो दैट आई कैन गेट द सम सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन बोथ ऑफ दिस वर्ड एंड कैन एबल टू मेक सेंस ऑफ द कंबाइंड वर्ड एज वेल, ठीक है। दिस वी लर्न सम इन द एडिशन ऑफ वेक्टर्स, राइट। नाउ इन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द वेक्टर्स, राइट, वी लर्न something called as dot product finished, dot product something which we learned today, right. It's a scalar quantity, how it's calculated, summation of the multiplication of the corresponding elements, right. That's how we calculated, right. इसका graphically क्या होता है भाई, कि उनका जो भी projection होता है throughout the x axis and y axis, we take the multiplication of both of them and together we do the sum, right. इसका एग्जाम्पल क्या होता है, वेरी गुड एग्जाम्पल विच वी टुक वाज द रिकमेंडेशन सिस्टम, राइट, कि अगर मैं कोई वेब सीरीज़ देख रहा हूँ तो मेरे को कौन सी और वेब सीरीज़ मेरे को सजेशन में आनी चाहिए, राइट। हाउ दिस हैपन्स इंटरनली, कि हम एक का वेक्टर बनाते हैं, उनका भी वेक्टर बनाते हैं, एंड वी ट्राई टू कंपेयर दिस कि वो कितनी सिमिलर है बेस्ड ऑन अ फॉर्मूला कॉल्ड कोसाइन सिमिलरिटी। व्हाट इज द फॉर्मूला, राइट। तो जितना ज़्यादा कॉस थीटा का वैल्यू आएगा, राइट, उतना ज़्यादा सिमिलरिटी उनके बीच में एग्जिस्ट करेगी, राइट। सो और कॉस थीटा का वैल्यू अगर बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब थीटा का वैल्यू बहुत कम है, और थीटा का वैल्यू कम होना भी चाहिए, राइट। अगर ये वेक्टर और वेक्टर आपस में पास होनी चाहिए तो इनका थीटा बहुत स्मॉल होना चाहिए, लेट्स से अगर बस एक वेक्टर यहाँ है और दूसरा मेरा यहाँ है तो इनका थीटा बहुत बड़ा होगा, विच मीन्स दीज आर नॉट सिमिलर एट ऑल, राइट। सो दैट्स हाउ वी कैन फाइंड आउट द कोसाइन सिमिलरिटी एज वेल, राइट। सो यस गाइज, दिस इज व्हाट वी हैव विद रिलेटेड टू टुडेज क्लास, राइट, ठीक है। आई होप यू गाइज एंजॉय दिस क्लास, ठीक है। एनी सॉर्ट ऑफ डाउट्स, ठीक है, guys have the access to the comment sections, right, can ask, I'll be happy to answer there as well, right, and you guys can have the Gmail of our channel name as well, right, तो वहाँ पे भी जाके आप मेल कर सकते हो, we'll be happy to connect with you in order to solve your doubts, right. So thanks for the attending this class, guys. I hope you learned it, I hope you enjoyed it, right. Give your feedbacks in the video section. If you like this video, comment, share it to your friends, and yeah, see you all in the next class. Thank you so much. Jai Hind, Jai Bharat.